pretty. Good, thank you. Hey guys, good morning and welcome back to a new vlog. And it's 6 o'clock in the morning. आजकल मैं बहुत ही जल्दी उठ रही हूँ and maybe I am getting used to it and it feels very nice. Okay, it's around 8 o'clock and I am in between my workout, and please do not ask me to share my workout videos. I look super funny and not at all comfortable sharing those. Hey guys, good morning. Yes, I'm sweating like a pig because I just got done with my workout. It's way too hot. Now I'll go to the kitchen, make myself a nice breakfast. Before that, a nice cup of tea. And here goes my very basic grooming, which I actually do every single day to make myself feel alive. Even if I am at home, I make sure कि मैं थोड़ा बहुत अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो सुबह सुबह ही ख़त्म कर दूँ, and I do some basic grooming so that I feel motivated to do all the work for rest of the day. Bengali chicken kosha बनाने के लिए I have taken some 500 grams of chicken and 2 big potatoes and I have cut them in half. मैंने 2 big size potato को बीच में से कट कर लिया है. And also I have prepared one paste जहाँ मैंने एक बड़ा साइज का onion लिया है, and I have taken 2 tablespoon of ginger paste, 2 tablespoon of garlic paste, 1 medium sized tomato and 3 to 4 green chili paste. Also, I will add 1 tablespoon of coriander powder, 1 tablespoon of turmeric powder and 1 tablespoon of red chili powder, and उसके साथ 1 tablespoon of cumin powder. And also I will add 1 tablespoon of salt. This is just for marination, ताकि बहुत अच्छे से ये मसाला and salt चिकन के अंदर चला जाए. And you can also add salt later according to your taste. Add 2 tablespoon of mustard oil at this point of time and make sure you only use mustard oil for this recipe. इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करें, एंड मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल यहाँ मिलाया है. Now add 2 tablespoon of curd. मैंने 2 tablespoon of दही ऐड किया है. Now mix everything together and keep it aside for 30 minutes. सब कुछ अच्छे से मिला के आधे घंटे के लिए इसको रख दे. So this marination is super important in terms of getting that ultimate flavor. So do not skip this step and do not forget to marinate your chicken beforehand. Now add another 2 tablespoon of oil. You can add some more oil if you are comfortable, but I wanted to prepare it in less oil. That's why I have added 2 tablespoon of oil, and this is actually sufficient. Once the oil is hot, I will add the whole spices, 3 to 4 cinnamon sticks, 2 to 3 cloves, 3 cardamom, and 3 to 4 black pepper seeds. Now I will add 1 medium sized roughly chopped onion. एक medium size का onion chop किया हुआ मैं यहाँ डाल दूंगी. And fry the onion till light in color. इसको अच्छे से फ्राई करें जब तक इसका कलर थोड़ा लाइट ना हो जाए. Now add 2 tablespoons of the same mixture which we added when we marinated the chicken. This has the ginger garlic, onion, tomato and green chili paste in equal quantity. Now fry everything together in medium flame until the spices get separated from the oil. जब तक मसाला ऑयल से अलग नहीं हो जाता है, इसको अच्छे से फ्राई करते जाइए. Also at this point of time I have added 1 medium sized chopped tomato. एक medium sized tomato मैंने यहाँ ऐड किया है.
जब मसाला ऑयल से अलग हो जाए तब हम लोग मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो यहाँ ऐड कर देंगे विद ऑल द पोटैटोज। एंड नाउ मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज्ड कैरेट, बीच में से मैंने जस्ट एक स्लाइस कर लिया है। यू कैन ऑल्सो ऐड पपाया, मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं जरूर डालती। एंड ये जो वेजिटेबल्स है इनको ऐड करने से कोई भी मीट करी का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई टू ऐड दीज वेजिटेबल्स इन योर चिकन करी एंड यू विल सी द डिफरेंस। Now let it cook for 10 to 15 minutes and stir in between just to make sure that ये नीचे से जल ना जाए। तो इसको आराम से थोड़ा 10-15 मिनट तक कुक होने दीजिए। तो मीनवाइल हम लोग मसाले का एक पेस्ट बना लेंगे जहां हम लोग देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर या फिर धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर। एंड इसको थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर के साथ मिला के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे एंड देन वी विल ऐड द पेस्ट इन द करी। नाउ कुक इट इन लो टू मीडियम फ्लेम कवरिंग द लीड। तो इससे क्या होगा, जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा एंड द फ्लेवर विल ऑल्सो कम आउट वेरी नाइसली। ऑल्सो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है मैंने ज्यादा पानी यहाँ ऐड नहीं किया है। आई हैव जस्ट एडेड वेरी लिटिल वाटर विद द स्पाइसेस एंड यहाँ बाकी जो चिकन है उसको मैं ढक के कुक कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा पानी ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट एक्चुअली ऐड वाटर, तो क्या होगा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वी विल ऐड वाटर इन द नेक्स्ट स्टेप, बट अभी के लिए दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर। नाउ ऐड 2 कप्स ऑफ वाटर। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा पानी आप ऐड कर सकते हैं, बट आई हैव एडेड अप्रोक्सीमेटली 2 कप्स ऑफ वाटर। Then close the lid and cook it for another at least 15 to 20 minutes in low to medium flame. Basically ये पूरे ही करी को बहुत ही लो फ्लेम में स्लो कुक करना है and that is the only mantra to get the ultimate taste. 15-20 मिनट बाद हम लोग चेक करेंगे कि चिकन एंड आलू बहुत अच्छे से जब बॉयल हो जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला। एंड दिस इज होममेड गरम मसाला जो मैंने घर में ही बनाया है। इसका रेसिपी भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बाहर के जो रेडीमेड गरम मसाला मिलता है उसमें मुझे लगता है बहुत ही कम फ्लेवर मिलता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रिपेयर द गरम मसाला एट होम। Also I am adding 1 tablespoon of ghee at this point of time and mixing everything together. Adding 2 slitted green chilies, and do not skip this step, this will actually change the flavor completely. And at last add 1 handful of freshly chopped coriander leaf and cook it for another 5 minutes before you turn off the gas. And tada, your chicken curry is all ready to serve. You can serve it with rice, roti, parantha, anything. तो आज हम लोग इसको पूरी के साथ खाने वाले थे, तो लंच में बन रही थी पूरी, बंगाली में जिसको हम लोग बोलते हैं लूची। सो दिस इज एक्चुअली ऑल पर्पस फ्लावर एंड इसको यूज करते हैं एज अ डो। एंड वी प्रिपेयर द डो एडिंग 1 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 स्पून ऑफ शुगर। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि पूरी कैसे बनाते हैं, बट बंगाली फॉर्म कैसा होता है ये मैं कभी बाद में आपको बताऊंगी, कैसे मैं बनाती हूँ, किसी और ब्लॉग में डिटेल्स में मैं शेयर करूंगी।
इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock एंड हम लोग आज एक वीडियो शूट कर रहे थे एंड ये उसी का तामझाम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेस होता है व्हेन यू एक्चुअली शूट वन वीडियो एंड वापस से सब कुछ ठीक करना होता है। तो शौभिक अभी वही कर रहा है, ऑल द स्टैंड्स एंड ऑल द लाइट्स एवरीथिंग, जो भी जुगाड़ू चीजें हैं उसको वो सही जगह में रख रहा है। एंड दिस इज वन फोटो ही इज क्लिकिंग फॉर माई इंस्टा। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सा फोटो है। Wow. And that's how my day ended, and so is the vlog. You take care, and I'll see you next time in another interesting vlog. Bye bye till then.